I am audible to you? Am Yes, I ma'am. audible? Yes, ma'am. Actually, the weather is really bad here today, so maybe पता नहीं कितने देर internet चले, so I'll just start it. Just wanted to confirm one thing, students. So your last working day is 31st, 30th, or 3rd or 4th? Ma'am, 31st. 31st. And your mid-semester examinations are beginning from 5th of August, no? Yes, ma'am. So what about 2nd, 3rd, and 4th? What you will have that day? Ma'am, don't know, ma'am. No such mail has come. Ma'am, I think preparation leave. No, because for the mid-semester examination, it was never given earlier. And in the end semester examination, you get a 1 week leave for exam preparation, but not for mid-semester. I don't know why. Okay, let me check. So first I will do your information system for development, and then just tell me at what time? 10:40. ठीक है, to just do the Excel का last part बचा हुआ है, मतलब for CEC, ठीक है, referencing वाला, and most probably you will be having your Excel CEC on Monday. Okay, next Monday, that is 26th of July. I hope your tutorial sessions are not going on right now on Mondays. No, Yes, ma'am. class? Is it over, QT and FF? Yes, ma'am. Okay, great then. Okay. Can you see the slide, students? Can you see the slides? Yes, ma'am. So last class we were doing the feasibility study. Ma'am, there is one request. हाँ, yes, Sushant. हाँ. मैम, जो हम लोग का CC2 होगा ना, हम्म. तो क्या आप उसको वेडनेसडे को रख सकते हैं, क्योंकि मंडे को ना हम लोग का 3 ठो CC पहले से लाइंड है. Actually, सुशांत, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये अक्रॉस द सेक्शन होने वाला है आप लोग. ओह, अच्छा अच्छा. हाँ, कोई पूरे सारे ओके सेक्शन का मैम. एक साथ. इसलिए. ओके मैम. ओके. ठीक है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, देख ही रहे हो, बस दिमाग लगाना है. ठीक है. हाँ मैम. ओके. पढ़ने की जरूरत नहीं है. द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेल एंड एनालिटिक्स सब्जेक्ट का क्या है ना, स्टूडेंट्स को सच में वो लोग बोलते हैं मैम एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने का बर्डन कम हो जाता है, बस सॉल्विंग. आप अपना किसी फ्री टाइम में बैठ जाओ, डेटा सेट उठाओ, काम करो, बात करो. You don't have to work up. हाँ, yes. कौन से टाइम में होगा मैम? टाइम जैसे 5 o'clock. 5 o'clock. 15 to 5:30 दो स्लॉट में हम डिवाइड करेंगे. ओके ओके ओके. Okay, so last class we were discussing about your feasibility study. Okay, so we have discussed operational feasibility last class, students, all of you. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Technical also we discussed. Ma'am, can you give a quick recap? Yes, I couldn't get you. Ma'am, can you give a quick recap? Sure. See, last class we were discussing about the system development processes, in which we discussed that what stages for this information system development the organization has to go through. Okay, so the first and the foremost point which they need to take into consideration, that is about the feasibility study. So feasibility study is the preliminary study which you all do for doing the operational feasibility. You have technical feasibility, you have cost feasibility, economic feasibility, government and legal restrictions feasibility, which actually facilitates you from all the angles, from all the perspectives, that your organization is going to develop the system in an entire suitable manner, which is good for the organization as well as for the market as well as for the society also. ठीक है. So कोई भी system जब आप develop करते हो तो उसमें ये चीजें नहीं आए. It's really very very important to be considered. So we discussed about the feasibility study. So feasibility study, I think we were just discussing only. So एक ये हो गया operational feasibility, that how it is going to facilitate in the overall strategic business performance of the organization. ठीक है. तो अगर आप operational status, जैसे हमने पहले भी discuss किया है कि when we are talking about the organizational structure, so organizational structures
कि लोअर लेवल से मिडिल लेवल आने में एंड देन फ्रॉम द मिडिल लेवल टू द टॉप लेवल आने में आपके डेटा फ्लो, डेटा को इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लग रहा है, how much you need to just bring in. अभी आप देखोगे ना, because there is so much merging of the new technological trends in your business, पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम देखते हैं स्टूडेंट्स, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, आ रही हैं, जो कि मर्ज अप हुई जा रही हैं. सो ऑल दीज आर द प्रोसेसेस. आपको क्या लगता है कि ऐसे हैपेंस में होता है? नो, अ बिग नो. अगर कि कहीं से भी कुछ भी अच्छा ये टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है, वी विल जस्ट मर्ज इट with our existing technology. A big no. They have to actually see to it that if this merging is going to happen, it is going to facilitate our entire system in a suitable manner. Your organizational people are going to understand the things in a proper manner. So this is the way how operational feasibility is really very, very important for the organizations to overall see to it that all the processes which is taking place in the organization is aligning with the technological system into your existing system. Got it? ये भी चीजें होती है. आप देखते हो ना, आपका सिस्टम है सर. Ma'am, I think your voice is breaking. Can you repeat? हाँ हाँ, एक मिनट. When you see to it, students, that it's not only organized system development, it's not only we are talking about that you're building an entirely new system for the organization. It also deals with that you are merging a new technology to your existing system. ठीक है ना? Because technology is something which is upgrading itself every day. अब तो हम every day का भी नाम दे सकते हैं. So which technology suits best to your organization, best to your organization structure, accordingly merge that. So for that, it's really very, very important that first you look into that what kind of operational structure is there within your organization. Accordingly, आप technology decide. ठीक है? ये हो गया. Then technical feasibility. Last class we have discussed that what all support technical infrastructure we require for developing any new system or implementing any new system. हमने डिस्कस किया था ना कि अभी आप ये सेशन करने के लिए क्या टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है हम सबके घरों में. क्लास, what all things are required? The laptops, the internet connection. More software is required, application. Ma'am, the Zoom application. Yes, and else many more other things. Not only about this session, for the entire online session you require a complete setup, okay, so that you can work properly, you can attend your sessions properly without any hindrance. Okay, so that is why अब सोचो अब हम आप लोग तो घरों में हो, then इतनी requirement की जरूरत है. Think about the organization where all are working on laptops. There are so many data generation is taking place, analysis is taking place. तो उनके लिए एक hardware और software support कितना important हो जाता है. So you have to see to it that ठीक है, हमने सोचा कि हम नया बनाएंगे या फिर you are going to bring in something new or you are going to merge some new technologies, but your organization technical infrastructure is going to support you doing that. Yes or no? Yes, then go about. No, then just start preparing your organization from that perspective also. Got it? Economic feasibility. Economic feasibility, how economical it is. देखो अब ये हम बोलेंगे कि वो ऐसे फ्री फंड में तो आता नहीं है. Technological implementation incurs huge investments. लेकिन आप ये सोचोगे because today you are investing, but later on your things are going to become very, very easy for you because it will facilitate you in cost saving. For further cost saving, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने e-business value system किया था तो आपने क्या क्या पढ़ा था? Geographical boundaries is going to reduce, structural boundaries going to reduce. You are going to have the dissemination of information becomes not very much costly for you.
So ये सब सारी चीजें होती हैं which facilitates the organization in the overall in implementing the overall benefits of the organizational data processing system. ठीक है, तो डेटा आप जब गैदर हो रहा है, उसकी एनालिसिस हो रही है, मींस दीज आर हैपनिंग इन बल्क एंड इट्स अ रियल टाइम सिस्टम सब चल रहा है आपका. इट्स नॉट दैट कि somebody is sitting, आपकी जितनी भी एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जितने हमने किए वो सब सारा रियल टाइम आपका चल रहा है. डेटा लोडिंग हो रही है, एनालिसिस हो रही है, सेव हो रही है, एंड देन इट इज फर्दर गेटिंग इनटू your data analysis system wherein you want to extract something very much meaningful from those data sets, then you just take that. ठीक है, so cost saving हो रही है, increased revenue हो रही है, decreased investment requirements. Okay, तो ये कहते हैं ना, आपका आज के डेट में अगर आपका सिस्टम ऑथेंटिक है और गुड है और एडवांस है, then you don't require to invest somewhere else. You just go about it. Because you are getting very quick responses from your system. अच्छा, यहाँ सेल्स अच्छी नहीं है, सेल्स क्यों नहीं अच्छी हुई? Because of this reason. फटाक से हमने काम किया. अब आपको क्या होता है ना, जैसे मार्केट रिसर्च का भी काम आपका सिस्टम आपके लिए कर रहा है. अभी जितने एनालिटिकल टूल्स है which you all these are coming up. अभी बिजनेस इंटेलिजेंस में आप लोग अगर if you log for, you will just see to it. These are all merged up at the decision support system and executive information system level. अभी क्या होता है, ये एनालिटिकल सिस्टम सब काम करता है, आपका मार्केट रिसर्च करता है, आपका प्रिलिमिनरी रिसर्च करता है, which and it is an ongoing process. It is not stopping at any time. It's just going on and on and on. अभी आप BRM में भी ये सब सारी चीजें पढ़ोगे. So these types of decreased investment requirements actually facilitating the organization in doing a continuous study. Then you have increased profits. Obviously, if your revenue is going to increase, your investment requirements is going to increase, is going to decrease, then your profit is actually going to increase. Then coming to the cost benefit analysis that we will discuss in detail. Human factor feasibility, acceptance, लोगों की acceptance, एम्प्लॉय की, कस्टमर की, सप्लायर एक्सेप्टेंस. अभी आप देख लो स्टूडेंट्स, हम लोग सब व्हाट्सएप यूज करते हैं. व्हाट्सएप में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ भी एनी अपग्रेडेशन इट्स कमिंग. डू यू रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर यूजिंग दैट स्पेशल फीचर? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. Not at all. Facebook, Insta, all these things, और जो आप जीपे या फिर यही सब यूज करते हो, ये सब एप्लीकेशन जो ओपन एप्लीकेशंस हैं, ओपन सिस्टम्स हैं, डू यू रिक्वायर एनी? और आप अपने घर के लोगों को भी एक बार, जो मतलब आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो आपने एक बार सिखा दिया होगा कि ऐसे होता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी यूज्ड ऑन वर्किंग ऑन मोबाइल फोन्स. लेकिन आपके लिए क्या वो स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी? No, ma'am. No. As a customer talking about. No, a big no. You have to make such systems which is actually very much easy for your customer to use. अभी आप लोगों को याद होगा फेब के टाइम में व्हाट्सएप पे एक इश्यू आ रहा था कि so if there was a threat कि everyone is going to, because of the financial and the banking transactions threat, ऐसा हो रहा था कि सभी शायद उसको uninstall कर दें. Yes, WhatsApp को. Have you heard that news in Feb month? Yes, ma'am. Yes, In the month ma'am. of Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. But क्या वो हुआ? ऐसा कुछ भी हुआ? No, ma'am. They were just thinking of, but the thing was that they are not going to do, in which they are going to find कि अगर उनका इतना major customer जो range है, it's going to stop over there. Okay, so this is the way how you just think to it, that आपके जो employees हैं, आपके customers हैं, आपकी suppliers हैं, उनके लिए बहुत आसान हो काम करना. एक Amazon का केस स्टडी है स्टूडेंट्स, मतलब वो आप लोगों के लिए नहीं है, but I will just give you one snippet of it. Big data में वो लेती हूँ केस स्टडी Amazon का. उनका Amazon is a huge, they are having a huge supplier base. उनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. पता है उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है? अपने सप्लायर्स के साथ इंटीग्रेशन करने में. But they have found a solution for it. They have found a solution for it because they have a very high-end technology software with them. Amazon के पास. लेकिन जो उनके small players हैं, suppliers, obviously they are small players. They don't have much technology support जो कि एकदम फटाफट आपका सब कुछ देख पाए, accept कर पाए. So what they did,
they have made the entire supplier system in such a way that it has become very, very simple for the suppliers, and then finally they have integrated it with their system. Getting my point? तो उन्होंने देखा क्योंकि supplier side से ये problem आ रही थी because they were not their technological level and they were not up to that level. So क्या वो लोग suppliers को eliminate कर देंगे अपनी list से? Yes or no? No, ma'am. Are they going to No, ma'am. no, big no. उनके लिए सबसे एक छोटे से जिनका अगर फीडबैक अच्छा है, जिनका फीडबैक नहीं अच्छा आ रहा है वो तो खुद ही हटा देते हैं, लेकिन जिनका फीडबैक अच्छा है वो उनको वैसे ही सपोर्ट किए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको उसके साथ वो केस स्टडी शेयर कर दूंगी, बट क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने अभी बिजनेस एनालिटिक्स में बिल्कुल नहीं कुछ पढ़ा है, तो उसमें यही चीज दिखा रहा है कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया अपने सप्लायर्स को इंटीग्रेट करने के। And it's not only about in India, it's global level, talking about the global supplier level, how they have managed with their suppliers. Customer was not the problem, supplier was the problem, क्योंकि supplier के साथ उनको integrate करना है कि कोई product किसी को पसंद आया, now diverting that order to your suppliers and order is going to delivery management system, then delivery management system is going to pick up, फिर then there's so many कहते हैं पूरा का पूरा आपका ये रहता है। So that is why supplier acceptance is really very much required, and organizations have to think on it in a very, very deeper manner, and they are thinking. इसीलिए e-commerce और e-business is happening in a very, very efficient way in today's scenario. अगर ये नहीं रहता तो नहीं होता. Okay, then obviously your management support. If new technology is coming in, you have to train your employees. If you're not going to train your employees, if you're not going to make them comfortable on those technologies, then your technology is of no use. आप पहले बोल दो कि आपका ये करना है, so obviously how they are going to do it because they have not done it. तो क्या आप उन सब लोगों को अपनी organization से निकाल दोगे? No, train them in the right manner. Okay, and then tell them that oh, this is the new thing which is coming up. Now you have to work on this. Then determining the right people for various new and the revised roles. ट्रेन करो, नहीं हो तो लोगों को बाहर से भी बुलाओ, बट elimination and just laying off them is not the solution. Then coming to legal and political feasibility, obviously, which is happening too much in our country right now, Twitter ka dekh lo and all. Patent, copyright and licensing, it's really very, very important. Whichever technology or the system which is coming to your organization should be having this. अपनी कंट्री में कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पे वो कुछ दिन बैन कर दिए जाते हैं, हाँ? So these are all the feasibility which you have to just think into कि कहीं हम enter करने से पहले उस मार्केट हमें देखना है कि governmental restrictions कितना ज़्यादा है, okay? Then affected stakeholders and the reporting authority, all you have to just manage. Then coming to the cost benefit analysis, which we have discussed last, is the tangible and the intangible. Okay, so tangible, what do you think? Which we can see, okay, and that can be quantified. But intangible, that are the cost and the benefit that cannot be quantified. अभी आप देखो आपको एक अच्छा review मिल रहा है, okay, where the product was really very good. You will consider it in the category of tangible or intangible, students. Good reviews, good stars if you are getting, good ratings if you are getting. Intangible. Intangible. But is it important for you? चलो intangible है, लेकिन क्या वो important Yes, organization? The most important. Yes, ma'am. The most important. So आपको ये देखना है system will not give you direct tangible benefits. नहीं देता भी है and नहीं भी देता, लेकिन ज़्यादा intangible. अब आप भी देखो आपने decision making आपकी fast हो गई, ठीक है? So directly it is not tangible ना. It is intangible that because of that decision making you have done good decisions and because of that your profit has increased or you have sorted your problem. Okay, तो अभी आप सोचो ये tangible हुआ या intangible हुआ? Your decision making has become very fast because of this system. Is it intangible or tangible? Hello? Intangible. Intangible. Yes, but is it important for the organization? Yes. Yes, ma'am. Very important, very, very important. So you have to just see to it that only giving tangible benefit is not the main.
intangible benefits कितने आ रहे हैं, and because of that you are getting lots and lots of tangible benefits. That matters a lot. We'll discuss some of them. You can see you read it in your book also. There's a tangible benefits with examples. Obviously, increase in the sales or the profits. Processing cost, which we have already discussed in the last topic also. Decrease in the operating cost. Obviously, operations के लिए जो भी cost होती है, delivery, finance, everything is decreasing. Further investments requirement actually decreases, and increase in the operational efficiency. It has become more fast, in fact, more real-time basis. So your development of IT-based products, elimination of unnecessary documents not required, filter it out. Filter. अभी आपके पास भी जितनी भी चीजें आती हैं सब filtered information which is coming. जितना required है उतना ही document, उतनी information we need to just disseminate to our users. The introduction of obviously inventory carrying cost. ठीक है, ज्यादा अभी क्या है, अभी हम टेलर मेड चीजें बनाते हैं. अभी आपको एक प्रोडक्ट की जरूरत है, आप डायरेक्टली ऑर्डर करो एंड यू विल गेट इट एट योर प्लेस. बट आपको लगता है कि हम उसको इन्वेंट्री में स्टोर करेंगे एंड देन कस्टमर विल ऑर्डर इट एंड देन वी विल जस्ट मेक इट. नो, डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस यू विल गेट इट. So these are all the reductions in the inventory carrying cost. Decrease in the inventory investment required. आज के डेट में warehouses की जो system है that has actually become very less. Okay, then you have less obviously spoilage, waste and idle times. Intangible benefits, obviously improved information availability, abilities in the analysis, customer service. आप अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऑब्वियसली ये इंटेंजिबल बेनिफिट्स है, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है ये. मैम एक तो चीज पूछना था, मैम बोल रहा था टेंजिबल बेनिफिट्स में वहां पे टाइम दिया हुआ था. हाउ कैन टाइम बी टेंजिबल मैम? वो देखिए वेस्ट एंड आइडल टाइम. हाँ, आइडल टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, वेस्ट एंड आइडल टाइम क्या हुआ. अभी आज क्या होता है, एक टाइम अभी आपका जो एम्प्लॉइज है फॉर एग्जाम्पल, वो एम्प्लॉइज का एक मिनट आप टेंजिबल होता है, उसको उसकी कॉस्टिंग होती है कि नहीं होती है. सो इफ यू आर रिड्यूसिंग दिस, आप अपने इन्वेंट्री में लोगों को नहीं लगा रहे तो आपकी आइडल टाइम तो रिड्यूस हो ही रही है ना. गेटिंग माय पॉइंट. आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग है वो तो कम हो ही रही है ना. स्पॉइल जो हो रहा है इन्वेंट्री को इधर से उधर ले जाने में, वो कम हो ही रहा है ना. सो दैट इज व्हाई अभी क्या हो गया, वेस्ट एंड आइडल टाइम. अभी टाइम स्पेसिफिक हो गया है. टाइम अगर आपके पास टाइम पे कुछ आता है, देन ओनली डोमिनोज पिज्जा गुड एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, 30 मिनट्स के अंदर ज्यादा अगर लेके आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है कि उससे आपकी स्पॉइलेज जो है वो मिनिमम होती चली जा रही है. स्टूडेंट्स अभी देखो ना, जोमेटो का पूरा मॉडल ही वैसा है कि स्पॉइलेज नहीं होनी चाहिए. मॉडल में अगर आप लोग चेक करो ऑनलाइन इसको, और बिजनेस मॉडल ऑफ जोमेटो, स्पॉइलेज नहीं है, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट आपका जितना होता है उतना आपको मिल रहा है. सो ऑल दिस इज रिड्यूस्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम तो सबसे बड़ा टेंजिबल थिंग है आपको. ठीक है, अभी देखो ना, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है. ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब क्या, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग इन द फॉर्म ऑफ टाइम ओनली ना. यस और नो? यस मैम. मैम वो नहीं पूछो मैम, दैट आई अंडरस्टैंड. मैं बोल रहा था जो हमने जो डिफरेंशिएट किया इंटेंजिबल एंड टेंजिबल बेनिफिट्स, सो टाइम शुड कम अंडर इंटेंजिबल, राइट? मैं वही पूछ रहा हूं. टाइम विल कम अंडर टेंजिबल ओनली. टाइम विल कम अंडर टेंजिबल ओनली. इसीलिए तो मैंने आपको डोमिनोज का एग्जांपल दिया. अगर उनका पिज्जा आपको 30 मिनट से ज्यादा में पहुंचेगा, आप उसको पे करोगे? नो. टाइम इज द सबसे बड़ा कॉस्टिंग है आपका यहाँ के डेट में. आपका एक टाइम, एक आप कितने आवर्स जॉब करते हो, अभी 8 आवर्स पर डे यू गेट सैलरी फॉर इट. टाइम नहीं है आपका टेंजिबल, बताओ. यस मैम, यस अंडरस्टूड, थैंक यू मैम. गॉट इट? सो टाइम का तो डायरेक्ट आपका ये कनेक्शन है विथ योर टेंजिबल दिस थिंग. अभी अपने कंट्री में अभी तक नहीं आया, बट आपको पता है यूएस में कैसा कल्चर है. मींस मेनी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे गिव यू सैलरी ऑन वीकली बेसिस. अच्छे मींस टॉप नॉच जॉब्स के लिए, यू नो दैट. आपने, और वो भी आवरली बेसिस पे काम हो रहा है. आपने इतने आवर्स कंप्लीट किए, 8 5 40 आवर्स या 45 आवर्स, 40 आवर्स से ज्यादा आपने 1 घंटा काम किया तो आपके उसके लिए ओवर टाइम मिलता है.
weekly salary. Do you know? यस मैम, वहाँ पे वीकली बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक। एंड 1 घंटा भी अगर आप ज्यादा करते हो, आधा घंटा से ऊपर वो घंटा कंसिडर होता है, टैंजिबल है कि नहीं? इनफैक्ट वॉलमार्ट तो पर डे सैलरी देता है। इफ यू वांट, अगर आपको पर डे लेना है, यू कैन पिक अप पर डे। आप इतने आवर्स कंप्लीट करो, आपकी सैलरी आपके इसमें अकाउंट में आ जाएगी। So it means it's all what what their employees want. Obviously, it is based on that. बहुत लोगों को पर डे चाहिए होता है, बहुत लोगों को वीकली चाहिए होता है, बहुत लोगों को फोर्टनाइट चाहिए होता है, बहुत लोगों को मंथली चाहिए होता है। So it depends. Complete flexibility given to people. आपको अभी पता है जैसे हमें CL and ये सब मिलता है ना, CL and all. So क्या होता है, वो डे बेसिस पे होता है ना, डे बेसिस पे होता है ना, सुना होगा कैजुअल लीव्स एंड ऑल। Yes, ma'am. In Ma'am, our yes, ma'am. organization, day basis पे होता है, but right now in many of the organization it has been converted to hourly. CL भी hourly basis पे, hours में आप छुट्टी लो, आपके वर्किंग डे में आपने इतने घंटे छुट्टी ली तो वो आपका CL हो जाएगा, आपका 8 आवर्स पर डे काउंट होने वाला है। तो क्या होता है, वो आवर्स में छुट्टियां मिल रही हैं। तो ये जो हाफ डे फुल डे नहीं, आपको मैंने आपका फर्स्ट हाफ पूरा काम है, आप रात में काम कर लो, आपको आवर्स मतलब है, आपने पूरे दिन काम नहीं किया तो दैट इज कंसिडर्ड एज छुट्टी। और आपने अगर 4 आवर्स भी काम कर लिया तो आपकी सिर्फ CL में से -4 आवर्स डिडक्ट होगा 8 आवर्स में से। सोच लो, अभी टाइम तो सबसे ज्यादा है, टाइम सबसे कीमती है बच्चे। Then obviously your intangible benefits, improved information availability, means whenever you want you get the information for the decision making processes. Improved abilities in analysis, whichever type of data, filtered data you want, you can just get it for the analysis. Improved customer service, very important, very very important. Employee का morale, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से फॉलो हो ना स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं हो सकता था जितना कि सिस्टम के आने से। अभी कहते हैं ना ब्लॉकचेन, अगर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का नाम सुना, करंट ट्रेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आफ्टर योर मिड सेमेस्टर। अभी देखो ब्लॉकचेन सब जैसी टेक्नोलॉजीज है ना, अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए आपके कंपनीज में, ठीक है, अपने कंट्री में, देन इट आपकी जो मिसमैनेजमेंट ऑफ द कैपिटल is going to reduce like anything. आपको लगता है कि ये फिर हुआ परमिट किया जाएगा, कभी आएगा? It's another part of the story. Transparency high रहेगी तो obviously those people who are working very hard, उनकी morale high रहेगी, because they will be means as per their job, as per your performance you will be judged. Okay, then improved management decision making. Obviously if you are getting everything very very fastly, इंफॉर्मेशन ही अगर, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा। देन कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑब्वियसली एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस इमेज। सो इमेज बोलेगा लोग कि इंटेंजिबल है, ठीक है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट एक इसका मैं कनेक्ट करूंगी, आप लोगों को पता है अभी जोमेटो का IPO आया था, यस लास्ट वीक स्टूडेंट्स? अच्छा, जोमेटो लास्ट ईयर इसने लॉस में था, अराउंड 1000 करोड़ की लॉस थी इसकी, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। बहुत दिन इसका बिजनेस ठप रहा क्योंकि होटल्स बंद थे, ठीक है, तो इतना लॉस हुआ। बट व्हेन द IPO वाज लॉन्च्ड स्टूडेंट्स, इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। पता है, ओवर सब्सक्राइब्ड। सोच लो यहाँ पे होता है बिजनेस इमेज। जोमेटो की इमेज इतनी अच्छी है, लोगों ने देखा तक नहीं कि वो इतने भयानक लॉस में था। सी द इमेज ब्रांडिंग क्या होती है, आप लोग मार्केटिंग वाले लोग सीखो। माय गॉड, बिगेस्ट ब्रांडिंग का इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। जस्ट चेक देख लेना, मींस दिस इज द मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने में उसने निकाला उतने में बिक गई, और कितने लोग दे वांट टू बाय इट ऑन डबल रेट आल्सो, and that organization was in loss, 1000 करोड़ से ऊपर के लॉस में था वो organization because of the pandemic.
है ना? सो सी बिजनेस इमेज क्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है? Just give you one example here. हाँ ठीक है. Examples: more timely and accurate information, OLAP and data mining, more timely service responses, obviously elimination of burdensome job tasks, क्योंकि structured जितने tasks हैं वो हम सब ने आपने देखा ही सब सारे आपके system enabled हो गए. Better information and decision analysis, systems that lock in customer, एक click पे आप lock हो जाते हो customer, large prospective customer. So आप एकदम ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि आपका एक क्लिक भी मॉनिटर हो रहा है एंड यू आर लॉक्ड. ओके. देन प्रोग्रेसिव इमेज एज परसीव्ड बाय कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स, जस्ट व्हिच आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. आप कुछ भी हो, ब्रांडिंग और इमेज अच्छा है तो चीजें आपके लिए अच्छी है. Then coming to the second point is your system investigation, wherein अभी तो हमने सिर्फ feasibility की बात की. Students, please read feasibility study in as much in depth because अगर मैंने बोला important है तो बहुत important है, ठीक है? Then your system investigation is the first steps towards a process, system development process. अभी तक क्या हो रहा था, आप अपने organization की study कर रहे हैं, but now you are moving further and you are investigating your entire organization. So it involves considerations of proposals generated by business IT planning. तो अभी आपने सारा अपना feasibility कर लिया है, आपने अब बिजनेस का पूरा हो गया है, अब आप अपना आईटी प्लानिंग स्टार्ट करोगे कि अब आपको करना क्या है. इट इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी ऑब्वियसली feasibility study of the proposed information system solution. So अभी आप अपना काम करोगे and then you will see to it जो आपने जो भी अभी तक feasibility study किया है उसको आप propose करोगे कि this is the proposal what you have done made for the organization. Then system analysis will start doing the in-depth study of end user information needs that produces functional requirements that used as a basis for the design of a new information system. देखो कोई भी information system output पे deal करता है, ठीक है? output अभी हमने बात की थी ना first topic में, input process output. output कैसा आ रहा है? output आपके जो end users हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? How quickly they are getting the output, all those things are being monitored. उसकी पूरी टेस्ट होती है, ठीक है? प्री टेस्टिंग, इनबिल्ट टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग मॉडल्स भी हैं, बहुत सारे टेस्टिंग मॉडल्स हैं which actually facilitates the organization to check out the preliminary studies result. ये भी होता है. Then coming to what does system analysis study, क्या करेगा system analysis, read क्या करेगा? Needs of the company end users obviously your employees, suppliers and customers, their resources and products of one or more present information system which is being used. अभी आपके पास जो present existing information system है उसको भी आप read out करोगे, वो कैसा कर रहा है, वो कैसे output generate करके दे रहा है. And when you are going to merge a new system in your organization, then what impact will be coming on to your information system. अभी आप अपने ध्यान दो स्टूडेंट्स, फ्लिपकार्ट अगर आप लोगों ने करेंटली यूज किया हो, फ्लिपकार्ट ने पूरी अपनी जो सेटअप थी ऑफ द एप्लीकेशन चेंज किया है. अभी रिसेंटली किसी ने चेक किया फ्लिपकार्ट को एप्लीकेशन Yes, उसका? अभी वेरी रिसेंटली 10 दिन पहले उनका पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया उन लोगों ने. हाउ इट लुक्स लाइक, मेड मोर इजी एंड कन्वीनियंट टू सर्च, ठीक है? सो दिस इज द वे. क्या होता है, अब इसके लिए भी उनको पूरा सेटअप, अगर ऐसे तो नहीं हो गया होगा, इसके लिए भी उन्होंने पूरी सर्चिंग की, नहीं देखा होगा कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को सर्च करने में. सो दे हैव इम्प्रोवाइज्ड द एंटायर एप्लीकेशन सो दैट द कस्टमर कैन बी feels more comfortable working on that. Then system capabilities required to meet information needs of users and their business stakeholders. That is actually also very, very important. Then you will do obviously organizational analysis. This study also includes organize your structure, your people, activities taking place, environmental analysis systems and current information system. What do you, अच्छा ये सब तो सारा आप समझ गए. Environmental systems क्या है students? Any idea? What about the environmental systems? Yes, please. Anyone? No. No. अरे जिस इकोसिस्टम में आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, मार्केट सिनेरियो, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं,
आपको किन के साथ डील करना है, ये सब पूरा उसकी इन्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंटल सिस्टम। इसको आजकल बेटर नोन न्यू टर्म इज इकोसिस्टम्स बोलते हैं हम, पूरी, ठीक है ना, विच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द ओवरऑल मार्केट सिस्टम। ठीक है, सो आपका ये पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम डजंट मीन दैट पूरा इन्वायरमेंट क्या है, नॉट ओनली दैट, पूरा एवरीथिंग, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, everything will be included, your custom economic environment, your geographical environment, your political environment, all these things will be your competitors, how they about the study which will be dealing with your environmental system. So आप ये पूरी एनालिसिस करोगे। अभी जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हो ना SIP के लिए, तो एक फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को सबको पूरी की पूरी सिस्टम एक बनानी रहती है, सॉरी एक रिपोर्ट बनानी रहती है, इन विच यू इंक्लूड, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो तो उसकी पूरी सेक्टोरल एनालिसिस करते हो ऑर्गेनाइजेशन के, एज वेल एज इन द सेक्टर इन विच इट इज एग्जिस्टिंग। अभी क्या करोगे, उस कंपनी का आप ये चेक करते हो कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, उनको थ्रेट किससे है। सो यू जस्ट मेक ओवरऑल, इससे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट एक सेक्टर की आपको पूरी एनालिसिस हो जाती है, एंड देन यू प्रोवाइड दी ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी ऑल्सो ओवरऑल। देन ऑब्वियसली अगर कोई करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका, उसकी तो आप पूरी अच्छे तरीके से रीड करते हो। Then what you do in the analysis of the present system, the hardware and the software which you all are having, then the network system, people resources used to convert data resources into information products, means आपके जो technical support है, business analyst team है, वो कैसे काम कर रही है, what else they require, do they require any type of training, or you want some new skill set for the organization, so that also you need to actually see. Then obviously system activities of input processing and output storage and control, ठीक है, ये सब कहाँ स्टोर होना है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। So there are so many things which you need to study before doing all these stuff. Then obviously logical analysis, this is the model, the blueprint of the current system, and it displays the what will system do to your organization। ठीक है, आपको ये बहुत लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे आप अभी जैसे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ नया ला रहे हो तो उससे कुछ कैसे रिड्यूस हो रहा है, हाउ द थिंग्स आर अपडेटेड ओवर इन योर इन्वेंट्री सिस्टम, सो ऑल आर टू बी डन इन अ वेरी वेरी लॉजिकल वे, इट शुड नॉट बी डन इन अ हैफएजेड मैनर। पूरी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल के साथ यू हैव टू डेवलप योर इन सिस्टम्स, so it allows an analyst to understand the process, functions and the data associated with it. Then coming to the functional requirement, functional means what function actually it is going to give you, ठीक है, so it's one of the most difficult one, functional actually, because that type of information each business activity requires, क्योंकि हर organization का function अलग है, it's not the same, okay, so you have to just see to it that how they are doing it। अभी आपके सामने आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आपके पास जोमेटो, सॉरी Amazon एंड फ्लिपकार्ट है, दोनों का काम सेम है स्टूडेंट्स, सेम काम है, Yes, yes or ma'am. no? Yes, ma'am. They are doing the same work, but the way they do their business and the way is it same altogether? Is it same? Not really, ma'am. Not really, yes। आप देखो, आप ऑर्डर तो दोनों जगह से कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से भी कर रहे हो, Amazon से भी कर रहे हो, सेम प्रोसेस है, जीपे से यहाँ भी पे किया, जीपे से वहां भी पे किया, या फिर कैश ऑन डिलीवरी इधर से किया भी, कैश ऑन डिलीवरी उधर से भी किया, बट व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? व्हाट डिफरेंस यू फाइंड? एनी डिफरेंस? कभी सोचा है, कभी देखा है, ऑब्जर्व किया है आपने? Just your observation I want. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ओके, एक और एग्जांपल देते हैं। आप पेमेंट करते हो, कभी कभी बैंकिंग अपने से भी करते हो, जो आपका बैंकिंग एप्लीकेशंस है थ्रू नेफ्ट, एंड समटाइम्स यू डू थ्रू जीपे। दोनों के बीच में क्या है? दोनों तरह से पेमेंट कर रहे हो, आपके अकाउंट से ही पैसे जा रहे हैं, बट व्हाट्स द डिफरेंस? I'm the user interface. ठीक है, नंबर वन यूजर इंटरफेस, सेकंड मैम कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन
वही यूजर इंटरफेस ही आ गया, GUI ओवरऑल यूजर इंटरफेस। उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यस यस एक्स्ट्रा कुड गेट कुछ यू नहीं प्लीज वंस अगेन। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बहुत है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। है। In banking apps, we can open a RD account. There is a multiple service, but phone pay, Google Pay, you can only send money. Yes, this one a good point you have brought up. There are multiple other services also available, but not with Yes. your GPay. Yes. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग मिस आउट कर रहे हो, सोचो सोचो। Ma'am, through GPay, we can avail various service like phone recharge and payment of electricity bill, bill payment. यस ऑब्वियसली यू हैव टू लिंक इट। तो देखो अभी इसकी यहाँ पे समझ में आ रही है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप एक ही अकाउंट से आप अपने आप को जीपे से, पेटीएम से, और एक और बहुत अभी आ रहा है बड़ा फेमस सा, मेरे पास दो ही है अभी, एक और किसी ने मुझे बोला वो बड़ा फोन पे, कोई और फोन पे, which वो नॉट फोन पे, अभी लेटेस्ट आया है। भारत पे, भारत पे। यस नहीं नहीं अभी नहीं, I'll let you know. It is capturing the market, बहुत फास्ट है उसका भी। पेपाल नहीं पेपाल भी नहीं, रेजर पे, हाँ नहीं नॉट रेजर पे, एक जेड से उसका कुछ नाम है, just check out and I am just skipping the name of that opening. अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, it's the output which you are getting when you have done with your payment, your ordering. जब आप रिसीव करते हैं कि योर ऑर्डर इज डन, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस प्रोडक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, output in which form you are getting, it's completely different, it's not the same. Tracking systems track कर ही रहे हो, लेकिन it's not same, it's very much different. Somebody has said graphical user interface. आउटपुट की बात जब आती है ना, इट्स can't be going to same, because in the same way organization is also processing the same. Okay, so you have to, second point पे आओ, to determine the information processing capabilities for each system activities. Process कैसे हो रहा है, it's a very very important task. Somebody said about the multiple features which your banks provide you, but not the GPay. Okay, so this is the way, आपकी क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग हो रही है, जीपे का अलग हो रहा है, उनका टारगेट कुछ, बट काम सेम हो रहा है, आप पे कर रहे हो दोनों से। So that goal is to identify what should be done, not how to do it. तो यहाँ पर फंक्शनल में हम आप सिर्फ ये बताओगे कि हमें ये चीज चाहिए, अब कैसे करना है वो लॉजिकल एनालिसिस चेक करेगा। Then system design overall 3 areas में divided है, which says your user interface, that how it will look like. अभी जैसे आप लोगों ने बोला स्क्रीन, फॉर्म, रिपोर्ट्स, डायलॉग डिजाइन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलॉग डिजाइन स्टूडेंट्स? डायलॉग डिजाइनिंग, डायलॉग डिजाइन क्या होता है? इंटरैक्शन विद द सिस्टम। अब बताओ, अब इसका एग्जांपल बताओ, व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम और एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चैटबॉट्स, योर CRM सिस्टम, व्हेन इन यू आर राइटिंग समथिंग, आप जब आप फोन करते हो कस्टमर सर्विस पे, ये सारा आपका डायलॉग डिजाइन सिस्टम। Okay, so because obviously every time you cannot give ना कि आपका जो प्री डिटरमाइंड स्क्रीन्स एंड फॉर्म्स एंड रिपोर्ट जनरेशन है हमेशा, उसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है। समटाइम्स your problem is something very much specific in nature, very unique in nature, so how to find that? So for that you need to have one dialogue designing system which will facilitate organization in getting some extra inputs from their customers. Okay, then obviously data element structure design, कि आपका डेटा कैसे लोड होता है, उसको कहाँ स्टोर करना है, everything in your data designing system. Then obviously processing कैसे चल रही है उसकी, ठीक है ना। तो ये सब ये प्रोग्राम एंड कोडिंग ये पूरा काम आपका करता है, ठीक है।
then it is process of converting new logical model into the physical one. Means आपने जो सोचा है, लॉजिक बनाया है, उसको एक पूरा फॉर्म दे दो, एक पूरा कंप्लीट सिस्टम के फॉर्म में you have converted it for the usage by the organization. Then there is one very important concept of system thinking. System thinking क्या करता है आपके, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी तक क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को देते, ठीक है, एज अ यूजर, बट नाउ द ट्रेंड हैज कम वेयरइन दे हैव फैसिलिटेटेड यू इन द थिंकिंग प्रोसेस आल्सो. इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब टेक्निक आए हैं ना व्हिच एक्चुअली फैसिलिटेट्स यू इन डूइंग द थिंकिंग प्रोसेस आल्सो इन अ वेरी वेरी गुड वे. So you can better understand a sales problem or opportunity by identifying the components of a sales system. तो आपने फाइंड आउट किया कि अच्छा सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है, inadequate selling effort is taking place. तो क्या इनपुट ये आया, तो उसकी प्रोसेस क्या की, आउट ऑफ डेट सेल्स प्रोसीजर हो रही है. मींस यू आर हैविंग अ वेरी वेरी ओल्ड मेथड ऑफ मेकिंग योर सेल्स, प्रमोशन, ऑल दोस थिंग्स. So that is why the output is coming as a poor sales performance. So when getting back, it will say incorrect sales information what you are getting. Is it so? Is it so that you are getting the incorrect sales information? ये नहीं कि हमने पूरा रिलाई कर दिया कि प्योर सेल्स परफॉर्मेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि आउट ऑफ डेट सेल्स प्रोसीजर हो रहा है. Again it will go back, it will again check up, it will see that if you are getting the incorrect sale information, if you are not getting the right poor sales performance, you will go back, you will check out, you will set the entire sales management team, और overall आप देखोगे कि नहीं, it's not because that the sales procedure has gone down because of this method procedure it has gone down. And maybe the sales has gone down because of the environmental issues, maybe because the product is becoming obsolete. There are so many things. So overall आप ये देखते हो कि सिर्फ आप बना देना, it's not the thing, it's verification and validity also your system is doing in today's scenario. So this is a huge thinking tanks now which is now being getting developed. इसको आपके syllabus में नहीं है, but still I have thought कि we will just talk a little bit on this and then finally feedback आप देते हो कि आपका inadequate selling report इसलिए नहीं होता, then you change it, ठीक है. So validity is also coming up again and again. Continuous checking होती है, data analysis का काम ही यही है, पूरी एनालिटिक्स सिस्टम है वो आपका यही काम कर रहा है कि डेटा को रीड करना. सिस्टम इनेबल्ड डेटा को हर टाइम रीड करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, comparing it with the past data and then just finding it out ki what is coming out of it. Okay, so this is your system thinking example. Hope it is clear, students. These systems are facilitating the organization in finding out these sales problem also, yeah, any problem of the organizations. Fraudulent practices तुरंत पिकअप किए जाते हैं, लोगों को पता भी ना चले, लेकिन fraudulent आपके डेटा से रीड करते करते वो fraudulent practices सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है. सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स अब डेवलप हो चुके हैं. यस क्लास, कैन वी मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes. Now coming to the first type of system is your prototyping. ठीक है. So prototyping is the rapid development and testing of the working models. Means wherein you have developed, okay, and you have floated it into the market, the concept, the idea, ठीक है. Or then you just wait for the reactions of your future users. प्रोटोटाइपिंग का कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हो जो कि मार्केट में अभी कमर्शियलाइज नहीं हुआ. एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दीज हैव नॉट येट कमर्शियलाइज्ड इन द मार्केट, बट यू नो अबाउट इट कि अच्छा ऐसी टेक्नोलॉजी या सिस्टम आ सकती है हमारे मार्केट में. यस, प्रोटोटाइपिंग सबसे ज्यादा किस सेक्टर में होता है पता है स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा प्रोटोटाइपिंग कहाँ हो रही है? ऑटोमोबाइल सेक्टर. एग्री विथ मी और नॉट? यस मैम. प्रोटोटाइप समझा ना आपने कि कमर्शियलाइज नहीं हुआ, सिर्फ आइडियाज डिजाइन हुआ है अभी तक. एक आइडिया है जो डिजाइनिंग हुई है एंड देन इट इज फ्लोटेड टू सी द रिएक्शन ऑफ देयर कस्टमर, हाउ एक्साइटेड दे आर अबाउट इट, उसकी पूरी ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपकी
they will just think of commercializing those things. System, आपके टेक्नोलॉजी एरिया में सबसे ज्यादा प्रोटोटाइपिंग हो रही है. मशीन्स, इसकी प्रोटोटाइपिंग हो रही है. मॉडल्स, इसकी प्रोटोटाइपिंग हो रही है कि दिस मॉडल इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर वे. सो दिस इज आर द रैपिड डेवलपमेंट्स वेयरइन आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसको डेवलप करते हो and you float it in the market and see the reactions ki how this is actually going to work. So it's a very, very rapid development and testing of the working models and interactive, iterative process used during the design phase. Interactive, you understand. What do you understand by students? Iterative. What is the literal meaning of iterative? Yes. Yes, students, please. Iterative का मतलब क्या होता है? Come on, class. आज इतनी शांति क्यों है? कुछ तो बोलो. देखो, इंटरैक्टिव है, मैं तुम कुछ बना रहे हो, आप तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो मैम तो फाइन, इज इट फाइन, मैं हर जगह आपको फीडबैक देती चली रही हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोजेक्ट ही बना रहे होते हो या कोई सिस्टम ही सोच रहे हो, कुछ बनाने का सोच रहे हो, सो यू आर आस्किंग मी एट ऑन एवरी लेवल, आस्किंग फॉर द फीडबैक्स ऑन एवरी लेवल. तो क्या होता है, आप उसको रीट्रेट करते हो, अगेन यू गो बैक, अगेन यू फॉर्मेट, ओके मैम ने ये दिया है, मैं फिर से उसको ठीक करता हूँ, देन आई मूव अहेड. Same thing happens with your prototype design also. आप इतना इंटरैक्ट करते हो अपने कस्टमर से, अपने स्टेक होल्डर्स से, जो they give you feedback on every level. अब जब फीडबैक मिलता है तो then again you just start working on it. Getting my point, students? So interaction facilitates in the iteration process. Whichever are the, obviously आप हर चीज को तो नहीं iterate कर सकते हो, जो आपको लगता है कि okay this is the logical one, we will just think of making it again and again. So they keep on designing till the time they are getting the feedbacks. Got my point, students? Yes. Any problem? Understood the concept? So yes, Rajiv. Yes, ma'am. क्लियर है? अमृता, अविनाश, Yes, ma'am. आज कितनी शांति क्यों? निमित, साक्षा, सयाली, ठीक है. सो अभी देखो, अभी क्या होता है, ये बहुत फास्ट भी होता है क्योंकि जो फर्स्ट मॉडल होता है वो बहुत फास्टली बनता है और इजी भी रहता है, बिकॉज एक प्रोटोटाइप होता है जो आप डेवलप कर देते हो. आप लोग कभी ऑटो एक्सपो गए स्टूडेंट्स? कभी भी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे ज्यादा मतलब ऑब्वियसली कमर्शियलाइज्ड व्हीकल्स भी रहते हैं, लेकिन द मेजर पार्ट इज इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो में जाओ, सबसे मेजर पोर्शन उसमें रहता है वो प्रोटोटाइप डिजाइन मॉडल रहती हैं कि नहीं रहती, कि वो अभी कमर्शियलाइज नहीं हो, जस्ट एक आइडिया जनरेशन हो गया, लोगों की रिएक्शंस चेकआउट किए जा रहे हैं. अभी एक और बहुत अच्छा मॉडल है, अभी आपके लैपटॉप्स के अंदर इनबिल्ट प्रिंटर का मॉडल, आप लोग चेक करना है यूट्यूब पे. ये एक मॉडल डिजाइन हो गया है इनबिल्ट, आप पेपर लगाओ एंड इमीडिएटली यू विल, उसमें इनबिल्ट कार्ट्रिज वो आपके आएंगे, यू नीड टू जस्ट चेंज इट टाइम टू टाइम. और ऑब्वियसली इसमें आप जैसे आप अपने नॉर्मल प्रिंटर्स में आप खूब एक बंच ऑफ पेपर्स लगाते हो ना, वो नहीं लगाना है. आप यू कैन just put one paper and you take the print out any point of time. In fact, your scanners also. Okay, class. So this is the way. 1040. 1040. Okay. Yes, ma'am. यही बस मैं खत्म करती हूँ, then I just. So this makes development much more faster and easier, and especially when end user requirements are very, very hard to find. And it has enlarged the role of the business stakeholders, obviously, क्योंकि ये इतना feedback देते हैं ना कि इसलिए उनका रोल बहुत हाई होता है. So prototype life cycle क्या होती है? Identify an end users business requirement. पहले आप देखो, इसका नहीं, ये थोड़ा blurred हो गया है, just check out and I'll update this.
आइडेंटिफाइंग एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, आप देखो, डिजाइन करो, देन डिजाइन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बिजनेस सिस्टम प्रोटोटाइप, रिवाइज द प्रोटोटाइप टू बेटर मीट एंड यूजर रिक्वायरमेंट, जितनी ज्यादा हो रिवाइज करते रहो, यूज एंड मेंटेन द एक्सेप्टेड, फाइनली अगर एक्सेप्टेंस आती है देन यू कैन मूव अहेड, अदरवाइज देखो ये बार बार इटरेट होता है, साइकिल में जाती है. Okay, so this is the way how your prototype life cycle just find out. So we will do it in the next class. अब फटाफट भागेगा, जो मेन चीज है वो आपका हो चुका है. Okay class, now please open your Excel sheets. Hope you all have revised it, students. जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. कहीं कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम. Anyone, please feel free to ask, students, please. My sincere request to all of you. ठीक है स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पूरा का पूरा एक सेल जो था उसको लॉक किया था. क्लास अब देखो, एक छोटा सा सिस्टम ये है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो हम चेकआउट करते हैं. दिस, ये बनाओ जल्दी से फटाफट, 5 10 15 20, दिस वन लाइक दिस, एकदम सेम मेथड ही होना चाहिए. मैम एक बार सिर्फ थोड़ा रिवाइज करवा लोगे, वो सेल लॉक कैसे किया था? अच्छा चलो मैं यहाँ नया बना देती हूँ, छोटा सा. ओके, नाउ दिस इज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, इसकी एनुअल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अगर हमारी एनुअल सैलरी है कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू दिस इनटू दिस. यस मैम. ओके, सो हमने क्या किया, हमने 12 डायरेक्टली पिक कर लिया, लेकिन यही 12 में अगर यहाँ से पिक करती या फिर कहीं मैं लिखती एनुअल टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू 12, सो हाउ इट वुड हैव हैपेंड. फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर मंथ्स. ठीक है, ऐसे करके रैप करो. इसको ढंग से बना देते हैं. is 12. ओके, अब मुझे यहाँ से ये वाली चीज हटा के हमें ये दिखानी है कि this into this. ठीक है, पहले के काम में हमारा हो जाता, आराम से हम ड्रैग करते, लेकिन अब आप इसको ड्रैग करो नीचे. The result will come 0. Why 0 is coming? Why 0 is coming? Read all the cells properly. Check out. ये क्या है? H14 into J12. J12 में क्या है आपका? 12 है. Total number of months. Okay. JH14 में क्या है? 80,000. Now come to the second cell. यहाँ पे क्या कर रहा है वो? H15 into J13. तो H15 तो हमें चाहिए, लेकिन J13 वैल्यू नहीं. तो आप किसी को भी ब्लैंक सेल से कुछ भी नंबर को किसी भी चीज 0 से करोगे तो वो ऑब्वियसली 0 ही देगा ना. सो हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सेल को लॉक कर दें, सो दैट ये तो हमें चाहिए कि आगे बढ़ते रहे, बट ये नहीं चाहिए कि हम आगे बढ़े. यस, गेटिंग माय पॉइंट? द लॉजिक बिहाइंड लॉकिंग. ओके, तो हम क्या लॉक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे?
J12 J12 फंक्शन F, ठीक है, तो एंटर करो। अब करो उसको आगे बढ़ाओ, आगे आंसर अपना। क्यों? क्योंकि हर जगह आपका ये जो J12 था हमने लॉक कर दिया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? yes ma'am ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात अब ये हो जाती है कि हर जगह हम पूरा का पूरा सेल लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसीलिए हम आज करेंगे इसको ऐसे करते हैं, दिस इंटू दिस, एंटर हुआ। 15 5 75। अब हम ड्रैग करते हैं इसको आगे, करेक्ट है ये स्टूडेंट्स रिजल्ट? no ma'am अब आप बोलोगे मैम क्यों ना हम यहाँ पे भी 5 × 20 का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पे 10 × 15 का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो फिर एक्सेल यूज क्यों कर रहे हो जब मैनुअली काम करना है? तो आपको इतना स्ट्रांग बनना है फॉर्मूला डेवलपमेंट में, विच विल मेक द थिंग्स वेरी मच सिंपल फॉर, ठीक है। अभी आप चेकआउट करो, देखो समझो पहले कि कहाँ लॉक, इनको हम 2 मिनट में बता दूंगी कि कैसे लॉक होगा, बट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे E15 × D16 कर रही हूँ, ये क्या है स्टूडेंट्स अपना E15, ठीक है। ये हमारा 15 जो है वो E15 में है एंड 5 इज इन विच योर D16। नाउ चेक आउट हियर, जब हमने ड्रैग किया फॉर्मूला तो ये क्या हुआ, E जो था हमारा वो F हो गया, गॉट इट क्लास? E जो था हमारा F हो गया, ठीक है। मुझे तो वो चाहिए था कि वो हमारा F हो जाए क्योंकि वो हमें 20 × 5 करना है, लेकिन द थिंग इज दैट हमें यही 5 यहाँ पे चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज हो नहीं रही है, यहाँ पे क्या हो गया, ये E16 हो गया। E16 में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेकआउट करो। You will get understand better. ठीक है, इट्स क्लियर। हम ये दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। नाउ कम हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, E16 × D17 हो रहा है। E16 क्या है अपने पास स्टूडेंट्स, जस्ट चेक आउट, 75, यस, एंड 17 में क्या है अपने पास, हाँ 10। तो ये क्या कर रहा है अपना 750 करके हमें निकाल के दे रहा है। अब देखो ये और खतरनाक है, F16 × E17, F16 क्या है अपने पास, 1500 × 17। ये पूरा का पूरा है, ये काम हमारा गड़बड़ करके दे रहा है। आप बोलोगे मैम इसको हम तो यहीं से फॉर्मूला लगा दें फटाफट हो जाएगा, तो ये तो बच्चे 4 सेल है। What about when we are doing it more than 1000 and 100 with, अरे 1000 तो जाने तो 10 ही हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाद में एडवांस सेक्शन में हम डेटा टेबल भी सीखेंगे, बट लॉकिंग अगर आप ऐसे सीख लिया आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिंदगी। एक मिनट आप समझ लो, आप ये चीज सुनो, अभी देखो। अब आप बोलोगे कि मैम हम क्या लॉक करें यहाँ, कि हमारे पास यहाँ पे 20 × 5 आए, ठीक है। कैसे लॉक करें हम कि हमारा 20 × 5 आए, क्या लॉक करना चाहिए, 20। अच्छा एक बात समझो स्टूडेंट्स, अब हम दोनों चीज लॉक नहीं करेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक बताया था कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। E15 क्या है, E इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम है, 15 क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना रो नंबर है। तो हम यहाँ पे अब रो कॉलम लॉकिंग करेंगे, हम कहीं पे रो लॉक करेंगे, हम कहीं पे कॉलम लॉक करेंगे। नाउ कम हियर,
हमें देखना है कि ये हमारा, और हाँ, और हमें सिर्फ नीचे के लिए भी सोचना है, सिर्फ हम यहीं का ये नहीं सोचना है, नीचे के लिए भी सोचना है कि हम कैसे लॉक करें। सो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस केस में हम रो लॉकिंग कर देंगे। अभी देखो, अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे फर्स्ट में फंक्शन F4 2 बार प्रेस करो। 1 पूरा लॉक हो गया, 2 आपका रो लॉक हुआ, इससे कॉलम लॉक हुआ, इससे सारा लॉक हट गया। फिर से चेक करो, ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट ऑन योर ओन। और देखो नहीं जाता, आई विल नॉट रश थ्रू इट। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा सेल लॉक हुआ फर्स्ट फंक्शन F4 से। ये स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. सेकेंड बार आप इसको प्रेस करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रो लॉक हो रहा है। यस, फिर से प्रेस करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम लॉक। ठीक है, ई लॉक हो गया, ई कॉलम ई लॉक हो गया। फिर यहाँ से सारे हट जाएंगे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको इसका क्या कर रहे हैं, हम रो लॉक कर रहे हैं। हमें ये 5 इंटैक्ट रखना है। नाउ हम टू D16 क्योंकि हमें D यहाँ पे आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है, इस सेल में। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से और फंक्शन F4, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या लॉक किए, D क्या है अपना, D क्या है, 5 क्या है? 5 D16 D16 क्या है अपना, 5 लॉक हुआ है। अब देखो एंटर प्रेस करो उसको, अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट है आंसर? yes ma'am लॉजिक समझो स्टूडेंट्स, लॉजिक समझो। अभी देखो, अब पढ़ो इसको सारे सिस्टम को। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने E15, तो 15 लॉक हुआ मींस व्हाट, 15 लॉक हुआ मतलब मेरा ये वाला जो सेल है ये लॉक हो गया है 15। ठीक है, अभी चलो 15 आप लोगों को कंफ्यूजन दे रहा होगा, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 50 बना देती हूँ, इसको 100 कर देती हूँ, इसको 20 करती हूँ, इसको 30। ठीक है, तो 20 इंटू 50 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1000 ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, 20 इंटू 100 2000, ठीक है, 30 इंटू 50 1500 एंड 30 इंटू 100 3000 अब देखो यहाँ पे E15 में क्या है अपना 50 है स्टूडेंट्स, तो हम इस 15 जो है इसको लॉक कर रहे हैं, मींस हम अपने यहाँ पे रो को लॉक कर दिए, हम यहाँ पे अपने रो को लॉक कर दिए। और इस पर्टिकुलर केस में व्हाट वी आर डूइंग इन द सेकंड वन, व्हाट वी आर डूइंग, जो हम ये D को लॉक कर रहे हैं, जो जहाँ पे अपना 20 एंड 30 है, तो क्या है कि अपना D लॉक हो जाएगा, कॉलम लॉक हो जाएगा, लेकिन हमारा ये आगे बढ़ता चला जाएगा 15 16 17 18 19 20। और फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला जो कॉलम है, ये 16 वाला कॉलम ये लॉक हो जाएगा, बाकी ये E F G H I J K ये आगे बढ़ता रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही चीज हुआ, अब यहाँ पे हमने ये किया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये F15 हो गया, तो 15 तो हमें चाहिए ही था, 15 हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा कॉलम चेंज हो गया। नाउ चेक द सेकेंड पार्ट, D हमारा जो हमें चाहिए ही था, D क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट चेक आउट, D क्या है अपना 20 जहाँ पे लिखा हुआ है, और D हमने लॉक कर दिया, और उसके आगे हमने रो को बढ़ा दिया, मतलब ये 16 17 18 19 20 ये हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें बोथ द वेज वी हैव टू वर्क। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये E जो था वो हमने फिक्स कर दिया है, तो सॉरी 15 जो था वो हमने फिक्स कर दिया है, ये वाली चीज, और हमारा ये जो आगे जो है ये नीचे हमारा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे ये D था, सॉरी E था, एंड देन here it has become E15, and then it has become your D16, and then it has become your D17. Read करो अच्छे से स्टूडेंट्स, all of you read it properly. अच्छा, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम कॉलम क्यों चेंज करके देखो, देखो आंसर चेंज करके देखो, यहाँ पे हमने फंक्शन F4, यहाँ पे हमने ये लॉक कर दिया, उल्टा कर दो, देखो क्या होता है रिजल्ट इसका, ठीक है।
ये लॉक कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया स्टूडेंट्स, चेकआउट करो, क्या चेंज किया मैंने 15 की जगह ई लॉक कर दिया, मतलब रो की जगह है मैंने कॉलम लॉक कर दिया। और सेकेंड केस में व्हाट आई डिड, कॉलम की जगह मैंने रो लॉक कर दिया। ये रो एंड कॉलम लॉकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको अगर मैं ट्रैक करती हूँ क्या आंसर आएगा, सही आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज चेक इट, सही आ रहा है? मैम लाइक 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। हाँ 50 हाँ, तो इस केस में क्या हो गया, ये आगे बढ़ा दिया है ना हमने, तो ये आगे जा रहा है अपना। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इसीलिए वो ये काम हमारा सही नहीं होगा। तो आपको बस चेकआउट करते रहना स्टूडेंट्स कि कहाँ हम रो लॉक करेंगे और कहाँ कॉलम लॉक करेंगे। ये प्रैक्टिस पे आता है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जितना करोगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा चीजें। तो यहाँ पे हमें कहाँ क्या लॉकिंग करनी है उसके हिसाब से आप चेकआउट करते रहो। तो यहाँ पे हमें ये नहीं लॉक करना है, हमें कॉलम लॉक करना है, ठीक है? फंक्शन F4 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 ओके। और यहाँ पे हम क्या लॉक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन F4 F4, ठीक है? आप एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। Now come to this page. Who will volunteer to do this in the class? Who will volunteer? Anyone? चलो करते हैं साथ में मिलके। हम पिछली बारी वाले की तरह होगा। हाँ सेम, चलो ना सुशांत, चलो शेयर करो स्क्रीन। एनीवन, नहीं तो जिसे मन है कर सकते। हाँ चलो सुशांत, हाँ प्लीज। शेयर स्क्रीन एक्सेल नहीं equal to this into this। ठीक है, हाँ अब लगाओ 11 पे लगाओ पहले। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे। इधर जाएंगे तो रो लॉक होगा, 2 को लॉक करना है जब ना, तो अगर मैं 2 को यहाँ पे लॉक कर देता हूँ और नीचे में आएंगे तो हमको कॉलम लॉक चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कॉलम को लॉक कर देता हूँ, इंटर मार के देखते हैं, जॉब ठीक है। गलत आया, गलत गलत। ओके वेट, आगे हाँ यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। और 2 पे हटाओ, 2 पे हटाओ, 2 पे हटाओ। A2 को लॉक करना है, A2 से B1 B2 B3 हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और नहीं सब बी पे भी बी पे भी चेकआउट करो। यहाँ पे आप ये कर रहे हो तो इस जगह आप रो लॉक करोगे। हाँ अब करो। हाँ डिलीट करो, पहले डिलीट करो। हाँ हाँ अभी करो यहाँ पे, और यहीं से ड्रैग कर दो, एक ही साथ ड्रैग करो, एक ही साथ ड्रैग करो। सही है? 60 हाँ ठीक है, 60 सही है। पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका बन गया। जस्ट वेट, सबका आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जिसको लॉकिंग आ गई है, मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर आपने बना लिया, देन यू आर गुड टू गो। मैं एक बार और डिस्कस करूंगी इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और स्टूडेंट्स इसको भूलना मत प्लीज, एडवांस एक्सेल का बैकबोन है बैक लॉकिंग। मैम लॉकिंग फॉर्मूला बनाना आपके लिए नॉट अ बिग डील। हाँ मैम, लाइक वी हैव टू लुक आउट कि कौन सा रो, इधर पूरा रो लॉक करना या फिर पर्टिकुलर। यस एग्जैक्टली,
कहीं कहीं क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा सेल ही लॉक कर देना है, और कहीं होता है कि आपको कहीं रो लॉक करना है, कहीं पे कॉलम लॉक करना है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसने उल्टा कर दिया। नहीं नहीं, अभी एक काम करो सुशांत, अब बी हाँ, से मैम। एक B2 को A1 से करो। बीस हो गया। ऐसा फॉर्मूला, अब इसको आप 1000 डेटा टेबल पे क्यों ना चलाओ, आपका फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, गॉट इट क्लास। वी लुकअप, इंडेक्स मैचिंग, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से और सीरियसली लेना। ठीक है, लॉकिंग अच्छा, फॉर्मूला ड्रैग करो, फॉर्मूला ड्रैग करो, फॉर्मूला। यस, ड्रैग इट। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते उससे भी हो जाए नीचे। कितने भी सेल पे लगाओ, आंसर इज कमिंग टू करेक्ट। ठीक है, चलो वी विल डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज प्रैक्टिस। अभी भी किसी का नहीं क्लियर हो, थैंक यू सुशांत। अभी भी किसी का नहीं क्लियर हो, जिशान, राजवी, रमेश, अभी भी ऑल ऑफ यू। राजवी, अपूर्वा, कहाँ है ये लोग भाई? यस मैम। अपूर्वा इज देयर, राजवी, जिशान, यस मैम। हुआ आपका, दीपिका, सबका हुआ है ना? प्लीज करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बार बार इसको, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो हम एक ही चीज को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया तो वो हम कर लेंगे, बट प्लीज प्रैक्टिस इट, वी विल डिस्कस इट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल अगेन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू मैम। 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 थैंक यू।